and welcome. It is a big blow to the newly elected Wrestling Federation of India. Sports Ministry has suspended all its activities till further notice. Sports Ministry first sent them a strongly worded statement this morning, then asked the Indian Olympic Association to form an interim panel. Let us have a look at the dramatic developments on Sunday. It has been a dramatic few days in the world of wrestling. Brij Bhushan Sharan Singh's men winning elections, Sakshi Malik retiring, and Bajrang Punia returning his Padma Shri in protest. A day before Christmas, the government swung into action, stopping all activities by the Sanjay Singh panel. The Sports Ministry has also written to the Indian Olympic Association to form an ad hoc committee that will control and manage the day-to-day affairs of WFI. This requires for immediate and stringent corrective measures to uphold the principles of good governance in sports organizations, and thus now it becomes incumbent on part of the IOA to make suitable arrangements for the interim for managing the affairs of WFI so that sportspersons of wrestling discipline do not suffer, said Tarun Pratik, the Under Secretary to Government of India, writing to the IOA President. The government pulled up the WFI elected panel for taking decisions which were against the constitution of the Federation, not following the National Sports Code, the newly elected members being under complete control of the former office bearers, running the Federation from the premises controlled by the former key members. On the day he got selected as the new president of the Federation, Sanjay Singh announced that under 15 and under 20 trials will take place in Gonda, which is the bastion of former Federation boss Brij Bhushan, even though he claims to have distanced himself from wrestling. तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं. The new president wants to appeal to the government to overturn its decision. अभी हम लोग जाकर के सरकार से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे, खेल मंत्री से बात करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है. एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ लोग जाएंगे हमारे साथ, जाकर के बात करेंगे, प्रयास किया जाए कि वहां से अपना निलंबन समाप्त करवाया जाए. This brings temporary relief to the wrestlers who have fought for almost a year to clean up the system. देखो वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी. हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी. The relief for wrestlers is interim and it seems like things are back to square one as it was in May. It looks like there is going to be a long twisted court battle that lies ahead. With camera person Ashwini Mehra, Osama Shah for NDTV. Well, and this means that IOA will have to get in an interim panel sooner than later to do the day-to-day functions, activities of the Wrestling Federation of India. At this hour, I'm joined to know more about this story by Gitika Jhakar, who is India's first Arjuna awardee woman wrestler, Somveer Kadian, Indian amateur wrestler, Rakesh Singh, who is a coach and also the General Secretary of Haryana Wrestling Association, as well as Jagmati Sangwan, who's been a volleyball player herself and an activist as well. Pictures on your screen of Brij Bhushan Sharan Singh being felicitated by his close aide after their victory at the Wrestling Federation election. Let me come straight over to Rakesh Singh ji. Tell us, how far has he distanced himself from the Wrestling Federation? I'm talking about Brij Bhushan Sharan Singh, given that he was the one who was in the middle of the felicitations and those, you know, those pictures of the flowers being showered upon him and those garlands touching up to his chin. देखिए, ब्रिजभूषण शरण जी इस रेसलिंग से काफी दूर हैं. नई फेडरेशन का चुनाव हो चुका है और नए लोग इसमें आगे हैं. अभी जो इन पहलवानों का कहना है कि ये गोंडा में क्यों रखी गई
और ये बच्चों को भविष्य को देखते हुए, जो बच्चा 15 साल का है वो 31 तारीख के बाद 16वें साल में लग जाएगा, जो बच्चा 20 साल का है वो 21वें साल में आ जाएगा। केवल ये था कि उनका नेशनल इस समय पे हो जाए, और कोई मंशा नहीं थी कि हम गोंडा में कराएंगे या उनका बाहुबली वहां दिखाएंगे, ऐसा नहीं था। केवल लाखों बच्चे Rakesh ji, the जो question बेचारे 15 साल से is, did you call an executive committee meeting to decide on the trials? आपने एक executive committee meeting call किया था या नहीं? That is the question, and I think that is why the ministry has also pulled you up. देखिए 21 तारीख को इलेक्शन हुआ और ये 22 तारीख को हमने डिसाइड किया कि बहुत कम समय है। मिस्टर लोचब ने जो ये एलिगेशन लगाए हैं कि समय पे नहीं हुआ और इलेक्शन ऐसे हो गया, और वो महिला एक हमारी खिलाड़ी जो है वो देश के लिए मेडल लेके आई, उसको हम सलूट करते हैं। लेकिन जो अपने जूनियर बच्चे हैं उनका गला घोटने का जो काम कर रहे हैं, मैं अपनी बहन से कहना चाहूंगा, बजरंग पुनिया से कहना चाहूंगा कि राजनीति आप करें, लेकिन बच्चों का जो 15 साल का 12 साल का कैरियर उसको खराब ना करें। तुम्हारी कुश्ती समाप्त हो चुकी है, तुम अपने घर जाएं, अपना सोनिया गांधी की गोद में बैठें, भूपेंद्र हुड्डा की गोद में बैठें, कहीं जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, राजनीति ना करें, इन बच्चों का भविष्य खराब ना करें। राकेश जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम बार बार बात करते आ रहे हैं इन सब से, और एक बात जो कि बजरंग पुनिया ने क्लियरली बताया है कि वो ना कोई पार्टी के साथ है, ना कोई पार्टी को आप प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, एंड आई डोंट थिंक दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड आइदर। लेट मी गो ओवर टू सोमवीर कादियान। आपको लगता है कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जिस पॉलिटिक्स का विक्टिम छोटे बच्चे होंगे? नहीं, ऐसी मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। हाँ, कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करने में सबसे आगे खड़ी है। वो उनकी मंशा हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी इन खिलाड़ियों का सहारा ले रही है, लेकिन खिलाड़ियों का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि वो राजनीति करेंगे। गीतिका जी सोम जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो कोई ऐसा वो दूर है कुश्ती से, ब्रिजभूषण जी, तो ऐसा तो सभी ने देखा है। जैसे ये वीडियो चल रही है, जो फोटोज आ रहे हैं, कि दूर नहीं है। जैसे ही संजय सिंह चुने जाते हैं, डायरेक्ट उन्हीं से मुलाकात होती है और नेशनल भी वहीं रखा जाता है, तो वो दूर कैसे हुए? क्या पूरे देश में एक नंदिनी नगर ऐसी जगह है जहां नेशनल कंडक्ट किया जा सकते हैं क्या? और इस पूरे देश में जितने बड़े बड़े स्टेडियम्स, बड़े बड़े इंडोर हॉल्स हैं, वो एकदम वो ढह गए हैं क्या? और कोई जगह नहीं मिली? तो दूर होने की बात तो ये बस हवा में तीर है कि ऐसे बस सभी को बरगलाने की बात है। सभी को पता है, फोटोज, वीडियोज या सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, सभी को दिख रहा है। अच्छा राकेश जी, एक बात तो ये भी है कि गोंडा में क्यों कराया जा रहा था ये जो नेशनल्स है अंडर 15 और अंडर 20 के, पूरे देश में और कोई जगह आपको नहीं मिला इस समय नेशनल कराने का? देखिए मैडम, एक नेशनल कराने में करीब 30 और 35 लाख रुपए खर्चा आता है, और इस समय एक सप्ताह बीच में था, किसी भी स्टेट ने इनको कराने की जो क्षमता नहीं दिखाई। और जो सोमवीर भाई कह रहे हैं कि अभी वहीं क्यों, ऐसा कोई मेंटलिटी ऐसा नहीं था कि वहां कराना ही जरूरी है। वहां पे व्यवस्थित है, वहां पे सरकार ने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, और जो हमारे टाटा इंडस्ट्री के मालिक हैं उन्होंने वहां बहुत सुंदर सा कैंपस बनाया है रेसलिंग का, वहां माहौल है, और इस उद्देश्य से वहां रख दिया गया, कोई मंशा नहीं थी। और संजय सिंह उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, और वो भूमिहार से आते हैं, ये ठाकुर हैं। रिश्तेदार हो या ना हो, फेलिसिटेट करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए संजय जी गए हुए थे। लेट्स लुक एट अ ग्राफिक ऑफ हु इज संजय सिंह। Sanjay Singh is the president right now of Wrestling Federation of India. Sanjay Singh has been a part of the Wrestling Federation of India for as long as 12 years. Let's have a look at the posts that he has held. He has been a part of Wrestling Federation of India for 12 years, and he has been in the WFI Executive Committee for 2 terms, Joint Secretary for 1 term, and that means he has completed 12 years in the Wrestling Federation of India. Rakesh ji, क्या उनको इस चुनाव में
हिस्सा लेना चाहिए था, knowing that he is not qualified to contest? अगर वो हिस्सा लेते तो अपने बेटे को खड़ा करते, उनका बेटा भी मैं सक्रिय है। राकेश सिंह के बारे में बात कर मैं संजय सिंह के बारे में बात कर रही हूँ, नॉट ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्योंकि उन्होंने 12 साल कंप्लीट कर लिया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में, एंड ही इज टेक्निकली नॉट क्वालिफाइड टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस। ये देखिए ना, आप बड़े आदमी से आशीर्वाद लेने नहीं जाते क्या लोग? जीतने के बाद तो अपने मंदिरों में भी जाते हैं, अपने बड़े का आशीर्वाद भी लेते हैं। तो हमारे वो WFA के प्रेसिडेंट रहे हैं, संजय सिंह ने उनके साथ काम किया है, तो एक बार उनका आशीर्वाद लेने के लिए चले गए तो इन लोगों को क्या तकलीफ होगी? आप केवल आशीर्वाद के लिए लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, मतलब सोचना चाहिए। आप देखिए, बजरंग पूनिया को सब कुछ मिला, पैसे मिले, शोहरत मिली, नौकरी मिली, पद मिला, भूषण मिला। अब वो एक पद्म भूषण जो उनको मिला है, एक बहुत हरियाणा सरकार नहीं, हिंदुस्तान की सरकार ने उसको ये सम्मान दिया है, वो हिंदुस्तान की सरकार की बदनामी करने के लिए। आज वो एक छोटी सी बात के लिए अपने वो विशालकारी रमन का हक मार के एशिया चैंपियनशिप लड़ने चला गया। उस दिन उसका कहा गया था, लोगों ने धरने दिए, पंचायतें करी, भाई तू इसको या तो लड़के जा या इस लड़के को मौका दे। लेकिन उसने अपनी जिद पे अड़ा रहा, केवल लालच में, ये मेरा मेडल आएगा, 3 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे, 2 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे। उसका पक्का था कि ब्राउन्स मेरा आएगा, सिल्वर मेरा आएगा। वो लालची आदमी है। ये जो अभी घड़ियाल आंसू बहाकर जो ये कह रही थी कि मैंने संन्यास ले लिया है। सोमवीर जी कुछ कहने वाले हैं, सोमवीर जी कहिए, लेट्स हियर यू। मैं ये बोल रहे हैं कि बड़े से आशीर्वाद लेना, ऐसी बातें सेक्रेटरी साहब ने बोली हैं अभी। मैं उस बात पे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे ही वो चुने जाते हैं, वो वहां उनसे आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं, वो भी आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन जो एक मीडिया के अंदर जो वो ऐसे जो नारे लगा रहे थे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये कि कौन शोभा देता है कि चुनने के बाद तो उनके लिए सभी बराबर हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो वहां खड़े होने के बाद उनके साथ ऐसे नारे लगा रहे थे। सोमवीर पहलवान जी, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि उसमें घमंड की बू आई उसमें से, और उन्होंने उनको काफी लताड़ा भी है। और देखिए, ब्रिजभूषण शरण ने जैसा उन्होंने कहा कि blatant. Let me go over to Geetika Jhakar, who is India's first Arjuna awardee woman wrestler. Geetika, what do these pictures tell you? देखिए, आज जैसे पता चला मुझे कि बहुत ये शॉकिंग था कि हमारी फेडरेशन जो है, एक फेडरेशन आफ्टर द इंटरवीन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शंस हुए हैं, और उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो है तो मैं इसमें राजनीतिक और सब चीजें, सब वो एटीट्यूड अलग छोड़ करके, मेरे हिसाब से मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो नेशनल्स जो हैं उन पर वो होल्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमें सबको पता है कि जो है नेक्स्ट ईयर जो सब जूनियर का बच्चा है, जो वो एज का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेगा, वो उसके लिए 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो वो चीजें मैं समझती हूँ। मैं सिर्फ उस एटीट्यूड से बात करूंगी कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी कि जो हमारा जूनियर और सब जूनियर जो बच्चा है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये फेडरेशन का और ये जो लड़ाई है, जो चीजें चल रही हैं, जो कोर्ट के अंदर जो चीजें हैं, वो उसको ये मैटर वैसे सब जुडिस है और कोर्ट उसका अभी हम देख भी रहे हैं कि हर शायद 10-10 दिन में और कुछ मतलब फ्रीक्वेंटली इसकी डेट्स मिल रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये चीजें चल रही हैं, और मैं समझती हूँ कि जो फैसला कोर्ट को करना है, जो सब जुडिस है, वो वी शुड वेट फॉर दैट। और प्लेयर्स का जो है साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिशंस मेरे ख्याल से होल्ड नहीं होने चाहिए, वेदर फेडरेशन इज देयर और फेडरेशन इज नॉट देयर, पर टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए। और द IOA appointed committee does the nationals or not? बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि जब एक कोई कमेटी भी जो बना दी गई है, वो भी दैट वाज आल्सो वर्किंग एज अ फेडरेशन एट दैट टाइम। सो आप खिलाड़ियों को नुकसान, मतलब चल माना कि हमारे अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन जो तीनों ही प्लेयर्स हैं बहुत देश का नाम रोशन किया है और एक ओलंपिक लेवल पर उन्होंने मेडल दिया है। बहुत सबको पता है कि आम बात नहीं है, लेकिन
बात है। एक सब बिल्कुल जो एक छोटा बच्चा है जो रेसलिंग सब जूनियर से जूनियर में मूव कर रहा है और जूनियर से सीनियर्स को मूव कर रहा है, मतलब दिस 1 year is crucial for them. और Gitika, I will have to ask you, I'll have to ask you, you know, this wrestling is one of those sport that has been one of the most successful disciplines for India, given us so many Olympic medals. But do you बिल्कुल, say, बिल्कुल। would you say that the dangle of the netas have now cost this sport? And, you know, come Paris Olympic Games, it's going to be a struggle for wrestlers to win medals? बिल्कुल, आप देखें ना कि लास्ट टाइम जो ओलंपिक्स था उससे मतलब उससे 1 साल पहले मतलब इसी टाइम पर हम लोगों के पास 5 कोटाज थे ओलंपिक्स के लिए। आज के दिन हमारे पास एक सिर्फ हमारे पास जो अंतिम जो लड़की वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी जो क्वालिफाई करके आई है वो भी बड़ी मुश्किल से मतलब उसका जाना ना जाना वो अधर में लटक रहा था, आप सबको पता है, और उसके बावजूद वो क्वालिफाई करके आई है। अभी अगर ये सारी सिचुएशन ना चल रही होती तो हमारे पास हमारे और भी प्लेयर्स क्वालिफाई कर चुके होते, वो 2024 पर कंसंट्रेट कर रहे होते, और ये सारे मामले में सिर्फ उन खिलाड़ियों का जो एक्टिव रेसलिंग कर रहे हैं और जो ओलंपिक के मेडल के हकदार हैं, जो जीत सकते हैं, उनका नुकसान हो रहा है इस चीज में, और किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, चाहे आप बाकी सब कुछ भी कहें। Rakesh Singh, do you feel ashamed that the dangle of the netas have killed a sport that's been so far one of the most successful disciplines for India? देखिए मैडम ने जो गीता जी ने कहा, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि राजनीति बच्चों पे ना होनी चाहिए, राजनीति करें। No, sir, I'm asking you a question that you have to answer. Do you feel ashamed or not? देखिए मैं इससे सहमत हूँ, जो जाखड़ जी ने कहा है वो बिल्कुल राइट है। You feel ashamed, मतलब आपको शर्माता है कि इस स्थिति हमारे देश में पैदा हुआ है। जाखड़ जी की बात से सहमत हूँ जी। देखिए मैं कहना चाहूंगी, मुझे जब ये सारी न्यूज चलती है, किसी को भी ना शर्म आए, मुझे शर्म आती है पर्सनली कि ये सारी चीजें रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में हो रही हैं, और आज के दिन मतलब और लोगों को मुझे पता नहीं क्या फील करते हैं, पर मैं जहां भी मैं किसी मीटिंग में जाती हूं, किसी भी जगह पर कहीं पर भी मैं जाती हूं, लोगों की नजरों में एक सवाल होता है being a wrestler कि आपने wrestling, and I have been active member of Indian wrestling team for the last 20 years. Right. I have played for last 20 years, which is I think the longest time for any female wrestler. और ये चीजें मैं फेस कर रही हूँ, वो चीजें कि लोग समझते हैं कि मतलब क्या मतलब every girl is like that in wrestling in this sport. So बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, और मेरे को न्यूज पे आना भी मुझे आज के दिन बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। Jagbati Sangwanji, who's been a former volleyball player, she's an activist, she's also joining at this point. Yes, you have something to say, ma'am. Please go ahead. Yes. Of course, the welfare of a sports person is supreme for all of us, but it should be according to the norms and rules and regulations of the WFI. When the sports ministry felt that the rules and regulations are not being followed and are being violated blatantly as earlier, then it came down, and this is a decision in right direction. And at the same time, I want to say that for junior players, the tournament should be held as early as possible at some other venue. But at the same time, I'm proud of the courageous fight which was put up by the international players, Olympians, against the sexual harassment of sports women in the WFI and in general in sports also. It is due to their struggle that the issue of harassment of sports women
in different sports structures has got a central stage today. Earlier, the sports But and Jagbati ji, sportswomen would you- and their Jag- issues were marginalized. Right. Yes. Jagbati ji, Yes, with this, would you say that the whole issue of sexual harassment and harassment in general will be addressed in the sporting ecosystem? Is anything going to change after this? Because we know a lot of the federations, even now, they don't have a POSH committee. Yes, yes. The Human Rights Commission has issued a direction earlier that there were no internal complaints committee on sexual harassment. Out of 30, there were only 15 organizations which were having such committees. And they issued a direction that within month the committee should be constituted, and how they handle the sexual violence cases, it should be put up on record. And Right. after that, the things have started changing. And what we feel that these players, Sakshi Malik, Vinesh Fogart, Bajrang Punia, we are proud of them, and they have paid a heavy price for bringing this issue on the central stage, whereas it was going on blatantly, and the sportswomen were suffering. After the Rio Olympics in 2016, you see, Rika, a huge lot of women have adopted sports as career, and their parents are also supporting them. When I was international player, and I got the Dream Award, at that time there were very few women coming forward to take sports as career, because there has been a cultural taboo. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब खेल पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. But that changed when Sakshi Malik was the face of the Beti Bachao, Beti Padhao campaign. I will go over to Mr. Rakesh Singh. And What is the... let me finish my Yes, point, yes, Rika, ma'am. please. जगमती Please, सांगवान मैडम yeah. बोलिए, रुकिए एक मिनट. जगमती सांगवान जी रुकिए एक Yes, मिनट. yes. At that time, a huge रुकोगे तो मैं inflow of sports women is there in sports arena, and the infrastructure, the facilities, the level of training, the gender sensitization of sports structures, it has not taken place. So Right. we need to have a sports, women's sports policy, which should address these all concerns. Absolutely. And at Couldn't agree more with you, ma'am. जगमती सांगवान जी, अभी रुकिए, ब्रेक लगाइए sports थोड़ा, women औरों को भी get सुन a लो जरा. very Rakesh ji, I'll have to go to Rakesh ji for the last 1 minute of the program. Rakesh ji, इसके बाद क्या होगा? What is the next part of the drama that plays out? देखिए, ये जो तीन पहलवान जो नाटक को ड्रामा कर रहे हैं, ये 12 साल सर, ये से बहुत खराब बात आप कह रहे हैं. ये नाटक और ड्रामा नहीं है. It is a discussion, sir. You can't call it नाटक और ड्रामा. Quickly tell me what is next. पहलवानों ने काम किया है, और ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे बच्चों का, जो ऐसे पहलवान सीनियर उनको मिले हैं, जो गला घोटने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए छोटे बच्चों सर, के साथ इतना भेदभाव. इसके बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या करने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? आर यू मूविंग कोर्ट? देखिए, हम स्पोर्ट्स मंत्रालय से मिलेंगे, और वहां पे आश्वासन में सही नहीं मिलता तो हम कोर्ट जाएंगे, और ये कुश्ती को खराब नहीं होने देंगे. ये लोग अपने हाथ में कुश्ती लेना चाहते हैं, उनका कोई मंशा नहीं है, ना ये कुश्ती से दूर जा रहे हैं. इनको चाहिए कि हमारा दबदबा हो, हमारी कुश्ती हो, हमारी बैंड WFA की चेयरमैन बन जाए. इनका तो तीनों का एक ही नाता है. वो मैडम लेके आए थे बीच में, अभी इलेक्शन लड़ा उन्हें, उसकी 7 वोट आई हैं, संजय सिंह की 40 वोट आई हैं. जहां तक ये मैडम कह रही थी, 12 साल तक इन्होंने कुश्ती उन्हीं अपना ब्रिजभूषण के साथ रह के की है, और तभी ये मेडल लेके आए हैं. और इन्होंने लास्ट में जाते जाते उसमें ऐसा राकेश जी, मैं आपके बात समझ रही हूँ, लेकिन at the end of the day, it is about the future of those young athletes. At the end of the day, it is about saving the sport of wrestling. It is very, very shameful that till now, when Paris Olympics is a year away, not even a year away, only one girl has won the Olympic quota. As a result of what has been happening on ground, the agitation that has been happening and all the disturbances, the wrestling fraternity has been disturbed. Wrestlers have not been able to provide the performance that are expected of them. Thank you very much for joining me on the broadcast this evening.
With that, a wrap on the program. Thanks for watching.